Praise God. Hallelujah. पवित्र कलाम में से 1 Timothy chapter 2 verse 1 we will be reading and concentrating to learn from God's word. पवित्र कलाम में से पहला तिमोथियस का खत उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति की ओर हम लोग ध्यान करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूरी आप निकाल लीजिए, उसे अंडरलाइन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्स है हमारी ज़िंदगी के साथ जो ताल्लुक़ रखती है। We are going to go to 1 Timothy chapter 2 and verse 1. If you have a marker, you should underline this particular verse. पवित्र कलाम में से पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार लिखा है, I urge you, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिय भाइयों, सबसे पहले प्रार्थनाएं, विनती और अरदास जो हैं प्रभु के चरणों में करी जाएं। This is the way it goes in 1 Timothy chapter 2 and verse 1. I exhort you therefore, it goes with a tremendous emphasis. I exhort you therefore, first of all, supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. सब लोगों के लिए प्रार्थना करी जाए। For every people, for everyone, there has to be supplication. ये लिखा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है अर्ज करता हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे कहा जाता है। कंपल्शन नहीं है, बाय फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ये एक विनती है खुदावन के दास संत पौलुस की। Now this is the way Paul described that he wants to urge, he wants to exhort, he wants to plead, he wants to supplicate unto you that please come and do what I'm about to tell you. There is no compulsion, there is no force in that. क्योंकि जबरदस्ती कभी भी प्रार्थना नहीं होती है। Because you can never pray in compulsion. जबरदस्ती प्रार्थना करवाने से भी प्रार्थना नहीं होती है। Even if you try to exhort somebody by compulsion to pray, it's not going to be a prayer. जबरदस्ती प्रार्थना जो ऐसे अकीदे की प्रार्थना या ट्रेडिशन की प्रार्थना, रस्मी प्रार्थना जो है सिर्फ लिप प्रार्थना हो जाती है, दिली प्रार्थना नहीं होती है। Every kind of prayer which comes out of compulsion, which comes out of tradition, which comes out of rites and rituals is just going to be a prayer of word and won't be having any substantiality to that. और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, दूसरी प्रार्थना से नहीं। And the Bible says, according to the word of God, that the prayer of a righteous man availeth much. यीशु कहते हैं मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। And that's the reason the Lord Jesus said that my house shall be called the house of prayer. यीशु के शिगिर्दों ने उससे कुछ सीखने की डिमांड नहीं करी या विनती नहीं करी, उन्होंने कहा प्रभु हमें सिखा के प्रार्थना कैसे करी जाती है। The disciples of Jesus didn't go to Lord and ask for anything else, but there was only one thing they demanded, they asked for, Lord, teach us to pray. इसलिए पौलुस भी कलीसिया को लिखते हुए कहता है सबसे पहले बाकी सारी चीजें बाद की हैं। And that's the reason Paul, when he exhorts to the church, he says first of all is this, and then everything else will follow. प्रार्थना की जाए। Prayer, supplication should be made. प्रार्थना का भेद क्या है? भेद में प्रार्थना करना। What is the mystery of prayer? It's the mystery to pray. मैं अंग्रेजी भाषा में बोलता हूं मैं इसे। Please. Secret of prayer is praying in secret. Hallelujah. सही नहीं बनी गुजराती। એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવી એનો અર્થ કે પ્રાર્થનાને એકાંતમાં કરવી। ठीक है, सीक्रेट जो प्रार्थना का जो भेद क्या है, सीक्रेट क्या है कि सीक्रेट में प्रार्थना करी जाए। What is the secret of prayer? The prayer is ought to be bound to be in secrecy. प्रार्थना करने वाला इंसान जो है गुनाह करना बंद कर देगा। The one who is going to pray is going to abstain himself from sinning. और गुनाह करने वाला इंसान प्रार्थना करना बंद कर देता है। And the one who is going to commit sin, he will stop praying. मैं दोबारा कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। This is very important. I'm going to repeat it again. प्रार्थना करने वाला इंसान जो है गुनाह करना बंद कर देता है। The one who is going to pray is going to stop sinning. और गुनाह करने वाला इंसान प्रार्थना करना बंद कर And the one who would start to sin is going to stop praying. हमें अपनी लाइफ को वॉच करना है, क्या हम प्रार्थना में लगे हैं या गुनाह में लगे हैं। We need to watch our lives and know that either we are in prayer mode or we are going to be in the sinning mode. क्योंकि खुदावन का रूह तब तक जुम्बिश नहीं करता, तब तक हमें टच नहीं करता जब तक हम दुआ नहीं करते हैं। Because the Spirit of God cannot hover over us, cannot touch us, cannot penetrate unless and until we choose to pray. पवित्र आत्मा मखसूसियत मसा अजीजों, मैं पास्टर जितेंद्र बिगियल एक बार फिर
आपसे रूबरू बातें करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को सुना है। परमेश्वर की वाणी जो आपके दिल से बातचीत करती है वो व्यर्थ नहीं है। मुकद्दस बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आसमान और धरती टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बात, परमेश्वर कहते हैं, कभी भी नहीं टलेगी। उसका एक एक शब्द, एक एक बिंदु जो है पूरा होना बहुत जरूरी है और हमारी जिंदगी में अवश्य पूरा होगा। प्रियजनों, अगर आपके दिल से परमेश्वर ने बातचीत करी है, अगर आपको अंदर से प्रभु ने झंझोड़ा है, आपके उन नब्ज को छुआ जो कहती है कि मुझे परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, उसने आपके अंतःकरण से, आपके भीतरी मनुष्य से, आपके इनर मैन से बातचीत हुई है। The Lord has definitely talked to you. उसने आपके दिल से बातचीत करी है और वो चाहता है कि आप उसके करीब आए। याकूब की पत्री मुकद्दस बाइबल में ऐसा लिखता हुआ है, वहां पर परमेश्वर के करीब आओ और वह आपके करीब आएंगे। जैसे आप प्रभु के करीब आएंगे वो आपके करीब आएगा और आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो आप कई साल, कई तरीकों से, कई अलग अलग टेक्निक से करते आ रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। आप सब कुछ इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, बट आप वो जगह जो परमेश्वर की आपके दिल में है उसको नहीं भर सकते हैं। जब तक प्रभु आपके उस खालीपन को नहीं भरता, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई और वस्तु, कोई ऐशो आराम उस खालीपन को भर नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही भरी जा सकती है। याद है मुझे, आज से 12-15 साल पहले जब मैं इस प्रकार की खोज में था, असफलताओं में, परेशानियों में, जिंदगी में थक हार कर परमेश्वर की खोज में था, तब परमेश्वर मुझसे बातचीत करी, मुझसे मुलाकात करी। कई जगह पर मैं उसकी खोज में लगा रहा, पर जब तक प्रभु यीशु मेरे दिल के खालीपन को ना भरता, मेरा खालीपन भरा ना। अजीजों, वो आपसे बातचीत कर रहा है, आपको तब्दील करना चाहता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि आपको जिंदगी मिले और कसरत की भरपूर जिंदगी मिले। चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, जिसका मायना है कि इस दुनिया में शैतान आता है दुनिया की चीजें लेकर ताकि आपको नाश करे, घात करे, खत्म करे। पर प्रभु यीशु इसलिए आए हैं कि आपको जिंदगी मिले और बहुतायत की जिंदगी मिले। मेरी प्रार्थना विनती है कि आप और भरपूर जिंदगी को अपनी जिंदगी में लें, अंतर्लिंग ग्रहण करें और प्रभु को अपने अंदर काम करने की जगह दें। जब आप मन से विश्वास, मुंह से इंकार करेंगे, प्रभु आपके दिल में आएंगे, आपके गुनाहों गलतियों को माफ करके आपको नया शख्स बनाएंगे। यू डू दैट, प्रभु आपके साथ होगा।